So today we will be doing some practice questions. I will take up 4 different types of problems, and in a step-by-step manner, I'll demonstrate how to solve the questions on DC transients. So a typical problem statement may look like this. Find Vt for time t greater than 0. हमने ये definitions में पढ़ लिया है कि how do we define various aspects of time when a switching action takes place, right? So ये जो t equal to 0 है, this is the reference time. और ये जो switch के साथ जो arrow हमें दिख रहा है, this is the switching action. So once the switching action has been taken, thereafter we are denoting the time with t greater than 0, right? So इस circuit में हमें voltage V find out करना है in terms of time t. So this voltage is the potential difference across this capacitor. So assume the switch has been open for a long time, right? तो reference time से पहले यानी t less than 0 पर ये switch को on कर इसको ऑफ करके छोड़ा गया था काफी टाइम के लिए, and it is closed at t equal to 0, right? So this is a typical problem statement जहां पर हमें सर्किट में multiple sources हो सकते हैं. Resistance will of course be there, and there will be one capacitor or one inductor, right? So let us quickly review कि हमें क्या properties use करनी है to solve this kind of questions, right? So सबसे पहले let us come to a capacitor. Capacitor में हमें पता है कि voltage cannot change instantaneously, which means that you should focus on its voltage, right? जो voltage का expression होगा for time t greater than 0, the potential difference across the capacitor will be expressed as its potential difference at time t equal to infinity. ये t equal to infinity को हमने कहा था कि any time which is greater than 5 times the time constant. ये एक empirical assessment है हमारा कि उससे ज्यादा टाइम होगा तो we will consider it as time t equal to infinity, right? Plus potential difference across the capacitor at time t equal to 0. So this V0 is the potential difference across it exactly when the switching action takes place. और क्योंकि ये potential difference है कैपेसिटर का जो instantaneously change नहीं हो सकता, so this should be equal to V at 0 minus, यानी कि switching action से just पहले, right? So this V0 minus V infinity and e power minus t by tau. Tau here is known as the time constant, and this is equal to RC. Now the question is, what should be the value of R अगर एक complicated circuit है जैसे कि ये वाला, right? तो ये वाला R वो R होगा जिससे उस कैपेसिटर जो फाइनल स्विचिंग एक्शन होने के बाद उस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है अक्रॉस द कैपेसिटर, स्विचिंग एक्शन होने के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखेगा, that will be R. More appropriately, this can be written as RTH, यानी Thevenin's equivalent resistance across the capacitor. जैसे से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, I'll explain more on this. So this is the सर ये एक्सप्रेशन दोबारा बता दो सर. Which one? सर ये v at time 0 minus v at time infinity कैसे आया? ये हमने कल ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, राइट? यस सर. सर इक्वेशन तो आगे पर ब्रैकेट में ये क्यों लिखा है? दिस पार्ट V0 minus V infinity. यस सर. कल जब हम डिराइव कर रहे थे तब हमने ये देखा था कि हमने एक सिंपल केस के लिए डेरिवेशन किया था जहां पर ये कैपेसिटर डी एनर्जाइज था और इस स्विच को हमने क्लोज किया था एट टाइम t इक्वल टू 0, राइट? तो उस केस में क्या हुआ था, V0 जो था दैट वाज V0 जो था दैट वाज 0 क्योंकि कैपेसिटर डी एनर्जाइज था. लेकिन अगर कोई जनरल केस हो जहां पर कैपेसिटर में कोई वोल्टेज पहले से हो व्हेन यू टेक द स्विचिंग एक्शन,
इसीलिए इस V0 को एक फाइनाइट वैल्यू एज्यूम किया गया है यहाँ पर। ये मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो यू विल गेट मोर होल्ड ऑफ दिस, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग यू शुड रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, Okay, राइट। sir. सो टाइम कांस्टेंट जो है उसके लिए जो हमें रेसिस्टेंस चाहिए वो कौन सा रेसिस्टेंस है? स्विचिंग एक्शन होने के बाद, अभी ये वाला सर्किट तो बहुत सिंपल है, लेकिन वो सर्किट एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी हो सकता है जैसे ये वाला है। तो स्विचिंग एक्शन होने के बाद हमें ये देखना है कि कैपेसिटर जिन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है हमें, यानी कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो वो वाला रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। सो दिस टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू R इंटू सी। यानी कि जब हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा तो हमें ये तीनों वोल्टेजेस कैलकुलेट करनी है। V एट 0 हमें कैलकुलेट करना है, V एट इंफिनिटी हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम कांस्टेंट टाउ जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। वंस यू कैलकुलेट दीज थ्री पैरामीटर्स, तब हम वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन आराम से लिख सकते हैं। अब ये तीन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी। कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज क्या है? वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, व्हिच मींस दैट V at 0 plus will be equal to V at 0 minus. 0 plus 0 minus क्या है? जो रेफरेंस टाइम है उससे जस्ट बाद वाला टाइम और जस्ट पहले वाला टाइम। ये पहली प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। दूसरी हमें क्या याद रखनी है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। और ये ओपन सर्किट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? ये ओपन सर्किट की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो नो करंट कैन फ्लो थ्रू इट, राइट। सो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। ये वाली प्रॉपर्टी बस हमें याद रखनी है। वी विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद आई विल कम बैक टू इंडक्टर देन। ओके, सो आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन। सो हियर you are required to calculate the voltage VT, this voltage across the capacitor for time t greater than 0। और यहाँ पर कंडीशंस क्या दी गई हैं? assume the switch has been open for a long time। इसको बहुत देर के लिए ओपन करके छोड़ दिया गया था। इसको यहाँ पर ये इसलिए बताया गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जब इसको ओपन करके छोड़ दिया गया था तो हो सकता है कि कोई सर्किट ऐसा बन रहा हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, और अगर कोई करंट फ्लो हो रहा था तो कैपेसिटर भी धीरे धीरे चार्ज हुआ होगा, और फिर चार्ज होते होते वो जिस भी वोल्टेज तक फुल्ली चार्ज होना होगा वहां तक हो गया होगा, और फिर उसके अक्रॉस इसके थ्रू जो करंट होगा वो जीरो हो चुका होगा, है ना। तो अब हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमें VT कैलकुलेट करना है, एंड वी नो दैट दिस VT इज, प्लीज मैं ये बार बार सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें ये एक्सप्रेशन याद हो जाए, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन हियर इटसेल्फ। सो दिस इज V infinity प्लस V0 माइनस V infinity e पावर माइनस t by tau, और कैपेसिटिव सर्किट है तो tau will be equal to RC, right? So now let us proceed step by step to calculate these values. So first of all, let us see how to calculate V at 0. V at 0 जो होगा, यानी कि जैसे ही इस स्विच को हमने ऑन किया है, that will be equal to V at 0 plus, right? That is the potential difference as soon as you are turning on the switch. And because the potential difference across a capacitor cannot change instantaneously, this will be equal to V at 0 minus. इसका मतलब स्विचिंग एक्शन से पहले कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था हमें वो पता करना है, और वही वोल्टेज V at 0 है, राइट। तो स्विचिंग एक्शन से पहले ये सर्किट इस तरह का दिख रहा था। बिफोर द स्विचिंग एक्शन द सर्किट लुक्ड लाइक दिस। उस स्विच को ऑन किया गया है एट t इक्वल टू 0, है ना, यानी कि उससे पहले ये स्विच ऑफ था। ये सर्किट इस तरह का दिख रहा था। फिर क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि इस सर्किट को इसी तरह से रखकर लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया गया था। अगर इसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया था
तो क्या होगा कि अगर कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, पॉसिबिलिटी अगर होगी, तो वो फ्लो होता रहेगा, कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड, और over a period of time it will act like an open circuit, right? This is how a circuit, a capacitor behaves. So I am drawing equivalent circuit when this condition, in this condition this circuit was left for a long time. तो लॉन्ग टाइम के लिए जब आपने सर्किट को ऐसे ही छोड़ दिया था, तो उसमें हुआ क्या कि ये कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग गया। सो दिस वाज द सर्किट। अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि ये जो लॉन्ग टाइम पे छोड़ने के बाद ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज था वो कितना था, दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। ये वाला वोल्टेज जो है, यही वोल्टेज 0 माइनस, मतलब जस्ट बिफोर द स्विचिंग एक्शन होगा, और यही वाला वोल्टेज को हम V0 भी लेंगे, राइट? तो हमारा यहाँ पर टारगेट है V at 0 माइनस कैलकुलेट करना। तो लेट अस कैलकुलेट V at 0 माइनस। So for that, first of all, I am using branch current method here. तो सबसे पहले मैं करंट्स देख रहा हूँ। लेट अस अज्यूम दिस करंट टू बी x। ये करंट इस जंक्शन पर आएगा, डाउनवर्ड्स ये जा नहीं सकता बिकॉज इट इज ओपन सर्किटेड, और ये राइट वर्ड्स भी नहीं जा सकता, अगेन इट इज ओपन सर्किटेड, which means that this current is 0. So in steady state, no current is flowing in this circuit. I will take this loop. Let us call this as loop L. So in loop L, I'm writing KVL. So this is minus 10 plus V at 0 minus is equal to 0, which gives us V at 0 minus as 10 volts. तो जैसे ही जब स्विचिंग एक्शन होगा, कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज कितना होगा? 10 वोल्ट्स होगा, क्योंकि ये उस वोल्टेज तक चार्ज हो चुका था। सो सर कैपेसिटर के अंदर करंट नहीं जाएगा एक्स वाला? कैपेसिटर के अंदर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर इज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट। इट हैज बीन लॉन्ग टाइम जब इस सर्किट को हमने इसी कंडीशन पे रख के छोड़ दिया था। हम इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंच रहे हैं? प्लीज ट्राई टू रिमेंबर हमने कल क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जब ये सबसे सिंपल सर्किट हमने लिया था, this was the source voltage, this was the resistance, and this was the capacitance, this was the switch K which was turned on at t equal to 0. हमने जब इस कैपेसिटर के लिए वोल्टेज, लेट अस अज्यूम इट टू बी Vc, ये Vc जब हमने कैलकुलेट किया था, तो ये वोल्टेज हमें मिला था Vs 1 minus E minus t by RC, राइट? दिस इज व्हाट वी गॉट। तो इसके लिए जब हमने प्लॉट बनाया था वोल्टेज का, तो it was like this. This is the voltage. यानी voltage started from 0 and it was built up to a value which is equal to Vs, है ना? ये वोल्टेज का प्लॉट था। अगर इसमें करंट का प्लॉट बना है, यानी कि जो वोल्टेज की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दें। हमें मालूम है कि कैपेसिटर में करंट क्या होता है, I is equal to C dV by dt। यानी इस वोल्टेज को डिफरेंशिएट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें C से, तो जो हमें प्लॉट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। ये एक एक्सपोनेंशियली डीकेइंग करंट है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू Vs by R थी, और फिर वो एक्सपोनेंशियली डीके होता गया। जैसे जैसे वोल्टेज कांस्टेंट होगा, करंट विल बिकम 0। सो नो करंट इज फ्लोइंग एज टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि स्टेडी स्टेट में जब ये सर्किट आ जाएगा, तो ऑल्दो ये स्विच ऑन है, लेकिन इस कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट। किसी भी स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट अगर डीसी सोर्स से हम उसको फीड कर रहे हैं, राइट? तो यहां पर स्टेडी स्टेट कैसे है? यहां पर स्टेडी स्टेट ऐसे है कि स्विच हैज बीन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने स्विच को ओपन छोड़ दिया था लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कैपेसिटर को अपनी स्टेडी स्टेट में पहुंचने का टाइम मिल गया था। जब वो अपनी स्टेडी स्टेट में पहुंच गया था, इसका मतलब इट वाज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट। इज इट ओके? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हमने इसमें ये वाला लूप लिया, अगर हम दूसरा वाला लूप लेते तो v की वैल्यू 50 हो जाती।
अगर आप दूसरा वाला लूप लेते यहां पर, फिर क्या होता? तो सर v की वैल्यू 50 हो जाती, v0 की, v0 माइनस। Okay. Will any student like to comment on this? She is saying that अगर हम ये वाला लूप ले लेते हैं L2, तो V0 माइनस ओपन है सर ओपन है सर। ओपन तो सर्किट। लूप ओपन है और ये उसकी यहाँ पर क्रॉस देखो, वोल्टेज हमें पता नहीं है। राइट, ये वाला वोल्टेज जो है, लेट अस अज्यूम दिस वोल्टेज टू बी Vx। ये वाला वोल्टेज हमें पता नहीं है अभी, है ना। ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है, बट Vx इज नॉट नोन। ठीक है, Vx तो, बट स्टिल वी कैन कैलकुलेट Vx आल्सो हियर, बट अभी हम उसको नहीं करते। लेकिन अगर आप यहाँ लूप 2 पे भी लोगे ना, अगर प्रॉपरली आप सारे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे पोटेंशियल्स के, तो अगेन इट विल कम आउट टू बी 10 volts। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो जब इस स्विचिंग एक्शन से पहले एक स्टेडी स्टेट ऑलरेडी आ चुकी थी, जिसमें ये कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था, 10 volts था। तो जब हम अब स्विचिंग एक्शन लेंगे, तो कैपेसिटर का वोल्टेज 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द सर्किट नाउ, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या था? सबसे पहला, कैपेसिटर का वोल्टेज एट द इंस्टेंट व्हेन द स्विचिंग एक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो उस इंस्टेंट में जो कैपेसिटर का वोल्टेज आया है, दैट इज 10 volts। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? हमें V at infinity कैलकुलेट करना है। ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं कि कौन सा पार्ट मैं कर रहा हूं? मुझे करना है, सो आई एम just trying to calculate the values required for this expression Vt is equal to V infinity plus V0 minus V infinity e power minus t by tau। बस I am just trying to focus on this। So V0 मुझे मालूम चल गया, that came out to be 10 volts। Now let us see how। सर हम ये वाला एक्सप्रेशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता था कि स्टार्टिंग से थोड़ा चार्ज्ड होगा वो पहले से। नहीं, हमें ये हम हर जगह यूज कर सकते हैं। जो मैंने एकदम कल जो डेरिवेशन किया था, वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल डेरिवेशन था फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो हमें करना ही था। ये एक जेनरिक केस है व्हिच वी हैड बिल्ट अप आफ्टर डूइंग दैट डेरिवेशन। ये डाउट कई बार ऐसा होगा कि V0 विल बी 0, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि V infinity may come out to be 0। इट विल डिपेंड ऑन द सर्किट। ठीक है, तो देखो, आफ्टर द स्विचिंग एक्शन यहां पर क्या था? स्विचिंग एक्शन ये था कि आपने स्विच को ऑन कर दिया था। जब आपने स्विच को ऑन कर दिया, so now that switch is conducting and the circuit was like this। तो अब कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज होगा। इसमें क्या चेंज होगा, दैट आई डोंट नो, इट विल डिपेंड ऑन द सर्किट, बट इट विल चेंज। ठीक है ना। हमारा इंटरेस्ट लेकिन अभी क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि वी वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू V infinity। V infinity क्या चीज है? स्विचिंग एक्शन के बाद बहुत टाइम के लिए जब सर्किट को एज इट इज छोड़ दें, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, दैट इज V infinity। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैज elapsed, जब आपका सर्किट स्टेडी स्टेट में पहुंच गया है, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब t is tending to infinity। हमें कैपेसिटर की प्रॉपर्टी मालूम है, स्टेडी स्टेट में इट एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट। तो अगेन दिस कैपेसिटर विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है, अब वो इस तरह का दिखेगा। This capacitor is now acting like an open circuit। This is the potential difference across it, V। और क्योंकि ये टाइम t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे मैंने ये वोल्टेज मैं देख रहा हूं, तो I'll call it V infinity, right? So I'll write the values here। This is 10 volts, this is 2 ohms, this is 6 ohms, and this is 50 volts। So now we are required to calculate this potential difference V infinity। तो इसके लिए हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। आई एम यूजिंग, लेट अस यूज नोडल एनालिसिस फॉर दिस। सो ये जो नीचे वाला जंक्शन है, आई एम एज्यूमिंग द पोटेंशियल टू बी 0 volts।
अगर ये 0 वोल्ट है तो 2 ओम का लेफ्ट साइड वाला जो पोटेंशियल होगा दिस विल बी प्लस 10 वोल्ट्स, और 6 ओम का राइट साइड वाला जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 50 वोल्ट्स। ये वाला जो जंक्शन है इसका लोअर पोटेंशियल 0 है तो हायर पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V infinity, right? So now I am writing KCL at the junction, let us call it junction A. So taking currents to be outgoing, so this will be V infinity minus 10 divided by 2 plus downwards जो current होगा वो 0 है क्योंकि वो open circuited है, rightwards जो current होगा that will be V infinity minus 50 divided by 6, और 3 ही branches थी उस junction से connected, so this should be equal to 0. So let us solve this equation. So this will be 3 times V infinity minus 30 plus V infinity plus 50, and this is equal to 0. Solving this equation, I get 4 V infinity, and that is equal to how much? This is 20. This is minus 20, right? So V infinity comes out to be minus 5 volts. V infinity माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किट हमने जब ये स्विचिंग एक्शन ले लिया था तो इस कैपेसिटर की पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है इन द स्टेडी स्टेट, और वो होनी चाहिए थी क्योंकि ये 50 वोल्ट का सोर्स जो है ये रिवर्स पोलैरिटी के साथ लगा हुआ है, राइट? सो दिस V infinity इज नाउ minus 5 volts. V at 0 was 10 volts, और ये जो चेंज है ये एक्सपोनेंशियल चेंज है, और इस चेंज को आने के लिए जो टाइम कांस्टेंट है टाउ दैट इज टू बी कैलकुलेटेड नाउ। तो ये थर्ड हमारा जो पैरामीटर है वो बचा हुआ है अभी। सो नाउ वी आर सीइंग हाउ टू कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट, राइट? सो लेट अस कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट। सो फॉर t ग्रेटर देन 0 जब स्विचिंग एक्शन हो चुका था तो सर्किट हमें इस तरह का दिख रहा था। दिस स्विच वाज ऑन, and here was the capacitor. सर्किट हमें इस तरह का दिख रहा था t ग्रेटर देन 0 पर, और यही वो सर्किट था जो कैपेसिटर की वोल्टेज को चेंज कर रहा था, है ना? वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, या जैसे अभी हमारे साथ हुआ कि पोलैरिटी रिवर्स भी कर सकता है वो, राइट? सो दिस वाज 1/3 फैरेड। तो अब हमें क्या करना है? हमें वो वाला रेसिस्टेंस निकालना है विच इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस, राइट? तो उसको हम वो वाला रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? We will find out the equivalent resistance between the terminals across which the capacitor was connected. यानी कि we are calculating RTH now. ये कैपेसिटर हमारे लिए अब लोड की तरह है, और उसके अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं जिसको हम RTH कहते हैं। तो हम याद करें, प्रोसेस बहुत सिंपल था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो प्रोसेस बड़ी सिंपल है कि आप सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर दो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। और डीएक्टिवेट हम कैसे करते हैं? वोल्टेज सोर्स है तो रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो रिप्लेस इट विद एन ओपन सर्किट। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था, 10 वोल्ट का सोर्स था, उसको मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। ये मेरे लोड टर्मिनल्स हैं जिनके अक्रॉस कैपेसिटर कनेक्टेड था। 50 वोल्ट का सोर्स था, अगेन उसको डीएक्टिवेट करने के लिए मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस था। तो आई एम सीइंग द रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, right? And this resistance, this is the resistance RTH. तो A और B के बीच में हम जब देखेंगे तो हमें 2 और 6 ओम जो होंगे वो पैरेलल में दिखाई देंगे। So the equivalent resistance will be 2 into 6 by 2 plus 6. This will be in ohms. So this will be 2 into 6 by 8. So this will be 3 by 2 ohms. हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है? हमारा इंटरेस्ट है टाइम कांस्टेंट टाउ कैलकुलेट करने का, which is equal to R times C. So R came out to be 3 by 2 ohms and C is given as 1/3 farad. Time constant है, so it will be in seconds. So it comes out to be 1/2 seconds.
सो ये हमने आपने क्या थेवेनिन्स निकाला था ये? हाँ, हमें वो रेसिस्ट, देखो हम जो फंडामेंटल हमने जो डेरिवेशन किया था ना, वो ये वाला था। इस सर्किट में R जो था दैट वाज द रेसिस्टेंस थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग, जो इस कैपेसिटर के लिए चार्जिंग करंट है। कुछ केसेस में वो डिस्चार्जिंग करंट भी हो सकता है, जो भी करंट मतलब जो भी रेसिस्टेंस है विच वाज इन द पाथ ऑफ दैट कैपेसिटर करंट, राइट। लेकिन अब हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हैं कि यहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है आपके पास, और फिर यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन निकालो। तो हमने बाकी चीजें तो कैलकुलेट, वोल्टेज का एक्सप्रेशन तो हमें पता था, दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू वी इंफिनिटी प्लस वी जीरो माइनस वी इंफिनिटी ई पावर माइनस टी बाय टाउ। लेकिन टाउ के लिए जो आरसी था वो हमें पता करने के लिए इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का पूरा आर निकालना था, कंपेयर इट विद दिस, राइट। तो हमें मालूम है कि इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप एक सिंप्लीफाइड सर्किट में चेंज कर सकते थे इस तरह से, थेवेनिन्स थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। सो दिस रेजिस्टेंस इज आरटीएच, तो आई एम सिंपली कैलकुलेटिंग दिस रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया है, कैपेसिटर जिन टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, जो बचा हुआ सर्किट है वहां पर मैंने सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर दिया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, एग्जैक्टली वही जो हम थेवेनिन्स थ्योरम में करते थे। ठीक है, हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, यू विल गेट फैमिलियराइज्ड विद द होल प्रोसेस। सो या सर पिछले क्वेश्चन में हम v इंफिनिटी मिलमैन्स थ्योरम से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बट व्हाई टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। आपको स्टेडी स्टेट बिहेवियर, अच्छा एक बार आपने इसको ऐसा बना लिया तो आप यहाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। बट मिलमन्स थ्योरम में तो हम ये अज्यूम करते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, हम तो इसमें यही बोल रहे हैं कि करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है इसमें से। इसमें कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी के सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इसको हम छोड़ दें। हिज पॉइंट इज वेरी मच वैलिड। उनका पॉइंट ये है कि इस सर्किट को हम इस तरह से बना सकते थे। देखो this was 10 volts, this is 2 ohms, this was 50 volts, and this resistance is 6 ohms, and this potential difference is V infinity here. आप ये कह रहे हो, राइट? यस सर। तो यहां पर हम कर सकते थे this V infinity, Millman's theorem, this was 10 by 2 minus 50 by 6 divided by 1 by 2 plus 1 by 6. We could have done that also. So this will be in volts. ठीक है, सो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज V इंफिनिटी प्लस V0 माइनस V इंफिनिटी ई पावर माइनस टी बाय टाउ। तो अब हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज पता है। दिस V इंफिनिटी came out to be how much? -5. This was -5. V0 was 10 minus V infinity again -5, and e power minus t by tau came out to be 1 by 2. ये voltage है this, so it will be in volts. So the final expression will be -5 plus 15 e power minus 2t volts. So इस सर्किट में स्विचिंग एक्शन लेने के बाद जो वेरिएशन होगा वोल्टेज का वो इस तरह से होगा। और क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि एट टाइम t इक्वल टू 0.5 second what will be the voltage. So you just need to put t equal to 0.5 seconds and you will get the potential difference across the capacitor, right? हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let us solve this question. So here you are required to calculate the capacitor voltage for t greater than 0. Less than 0 तो हम करेंगे क्योंकि हमें उसी से ही हमें बाकी की चीजें पता लगेंगी, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा सर्किट है। So we are focusing on this voltage V, and we know that this voltage can be calculated as V infinity plus V0 minus V infinity. This is multiplied with e power minus t by tau, where tau is equal to RC.
तो यहाँ पर जो स्विचिंग एक्शन है वो ध्यान से देखें क्या है। स्विचिंग एक्शन ये है कि इस स्विच को टाइम t इक्वल टू 0 पर ऑफ किया गया है, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज वन बाय वन। v एट 0 यानी कि स्विचिंग एक्शन जब हुआ था तब का वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दिस इज एज गुड एज v एट 0 प्लस। और क्योंकि ये कैपेसिटर है जहां पर वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता, सो दिस विल बी इक्वल टू v एट 0 माइनस, यानी कि हमें स्विचिंग एक्शन से पहले की कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। सो बिफोर द स्विचिंग एक्शन, the circuit looked like this. This was the capacitor और ये रेसिस्टेंस था। स्विच ऑन था उस टाइम, सर्किट हमें इस तरह का दिख रहा था। इस सर्किट को बहुत देर तक इसी कंडीशन में छोड़ दिया गया था। जब आपने इसको इस कंडीशन में छोड़ दिया था तो क्या होगा, कैपेसिटर को जिस वोल्टेज तक चार्ज होना होगा वो हो चुका होगा और उसके थ्रू जो करंट होगा वो 0 हो चुका होगा। सो इट विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट, बाकी सर्किट विल रिमेन एज इट वाज। तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, अब ये एक स्टेडी स्टेट का पोटेंशियल डिफरेंस है और हमारा इंटरेस्ट स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले का है, तो आई एम कॉलिंग इट V एट 0 माइनस। सो इन दिस सर्किट वी कैन कैलकुलेट दिस वोल्टेज, राइट। सो यहां पर देखें कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो हो सकता, तो होल ऑफ द करंट इज फ्लोइंग हियर। सो दिस करंट, लेट मी कॉल इट I एट 0 माइनस, this will be equal to 20 divided by 5, so this will be 4 amperes. So once you know that this current is 4 amperes, you can apply KVL in this loop. So I'm writing the equation minus 20 plus 4 into 4 plus V at 0 minus, and this is equal to 0. So V at 0 minus will be equal to 20 minus 16. This is voltage, so it will be in volts. So this is 4 volts. So this V at 0 minus is as good as V at 0 plus, which is actually V0. So V at 0 यानी कि जैसे ही हम स्विचिंग एक्शन लेंगे उस टाइम इंस्टेंट में जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, 4 वोल्ट था। जब हमने स्विचिंग एक्शन लिया तो कैपेसिटर जो था वो फुल्ली डिस्चार्ज या 0 वोल्टेज वाली कंडीशन में नहीं था। इट वाज चार्ज टू अ वोल्टेज व्हिच इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट, स्विचिंग एक्शन लेने के बहुत देर बाद V एट इंफिनिटी। तो स्विचिंग एक्शन जब हमने लिया, Excuse me, sir. Yeah. Would you please show the last slide once again? Okay, thank you, sir. so after the switching action, जो सर्किट था वो इस तरह का दिख रहा था। हमने क्या किया, उस स्विच को ऑफ कर दिया, राइट। स्विच को ऑफ कर दिया और हमारा इंटरेस्ट है कि स्विचिंग एक्शन के बहुत देर बाद, अब स्विचिंग एक्शन के बहुत देर बाद क्या होगा, अगेन कैपेसिटर विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट, नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, राइट। सो when time t is tending to infinity, this circuit will look like this after the switching action. The capacitor is acting like an open circuit. The switch was off anyway, so this is 4 ohms, this is 20 volts, and this is the potential difference across the capacitor, और ये time t tending to infinity पर है, so I'll call it V infinity. So let us calculate this V infinity. यहाँ पर हमें दिख रहा है कि no current can flow here in any of the branches. So this V infinity can be calculated to be equal to 20 volts. Right? Sir, please explain this part again. This part. देखो हमने क्या किया, ये जो स्विच था ये ऑन था, हमने टाइम t इक्वल टू 0 पर इस स्विच को ऑफ कर दिया। अब जैसे आपने कोई स्विचिंग एक्शन लिया, कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज होने लग जाए। उसमें क्या चेंज होगा दैट वी डोंट नो, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस सर्किट को उसकी कंडीशन पर छोड़ देंगे बहुत देर के लिए,
तो क्या होगा कि कैपेसिटर को जिस वोल्टेज तक चार्ज होना होगा वो हो जाएगा, अपने स्टेडी स्टेट में आ जाएगा वो, यानी कि उसके थ्रू करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, उसके थ्रू करंट जीरो हो जाएगा हो जाएगा। इसका मतलब इट विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट, जो मैंने यहां पर बनाया है। स्टेडी स्टेट में व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी, दिस कैपेसिटर इज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट, और स्विच ऑफ था इसलिए मैंने इसको यहाँ ऑफ से दिखाया। तो हमारा इंटरेस्ट इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने में है। इज इट ऑल राइट? Sir, if the circuit is left on for a long period of time, then the capacitor gets fully charged and then it attains the steady state. But इस केस में वो पहले वोल्टेज पूरे तरीके से चला जाएगा, पहले करंट था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोल्टेज पूरी तरह से चला जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कैपेसिटर को जिस वोल्टेज तक चार्ज या डिस्चार्ज होना होगा वो हो चुका होगा। वी डोंट नो कि वो चार्ज होगा का मतलब है कि वोल्टेज बढ़ेगा, डिस्चार्ज होने का मतलब है कि वोल्टेज कम होगा। तो वी डोंट नो कि इन दोनों में से क्या होगा अभी, लेकिन हमें इतना पता है कि एक बार जब वो अपनी स्टेडी स्टेट में पहुंच गया तो उसका करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसका करंट जीरो हो जाएगा, उसी चीज को मैं यहाँ पर ओपन सर्किट से शो कर रहा हूँ। ओके सर, आई ठीक है, गॉट। यही स्टेडी स्टेट वोल्टेज है और इसी में हमारा इंटरेस्ट है। सो दिस स्टेडी स्टेट वोल्टेज कम्स आउट टू बी 20 वोल्ट्स। तो हमें V0 मालूम चल गया अभी, वो हमने पहले कैलकुलेट किया था, दैट वाज 4 वोल्ट्स। फाइनल वोल्टेज हमें स्विचिंग एक्शन के बाद का पता चल गया कि वो 20 वोल्ट है, यानी कि इस सर्किट में क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा कैपेसिटर का, सेम पोलैरिटी से। ठीक है, अब हमें एक चीज कैलकुलेट करनी रह गई है, वो है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू RC, और ये R कौन सा R है? स्विचिंग एक्शन के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है अक्रॉस द कैपेसिटर, वही वाला R है। सो स्विचिंग एक्शन के बाद यानी t ग्रेटर देन 0 में सर्किट जो था वो इस तरह का था। This was 20 volts, this was 4 ohms, and this was the capacitor of 2 farads, right? This was the voltage, और स्विचिंग एक्शन हुआ था मतलब ये स्विच ऑफ था। तो अगर हम अब कैपेसिटर के अक्रॉस देखें नेट रेजिस्टेंस, तो ये वाला रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज यहाँ तो ओपन सर्किटेड है, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो हमें जो नेट रेजिस्टेंस दिखाई देगा यहाँ पर, दैट विल बी 4 ohms. So time constant will be equal to R, यानी कि 2 into 4, so this will be in seconds, this will be 8 seconds. So finally we can write the expression for the instantaneous value of voltage Vt, that will be equal to V infinity plus V at 0 minus V at infinity e power minus t by tau. So let us write the values here. V infinity was 20 volts, V0 was 4 volts, again V infinity which was 20 minus t by 8. ये voltage है, so it will be in volts. So the expression for voltage here will be 20 minus 16 e power minus t by 8 volts. सर एक बार V0 कैलकुलेशन दिखा दो। स्विचिंग एक्शन जब हुआ था तो ये स्विच ऑफ हो गया था, है ना? तो हमने क्या किया, उससे पहले वाली स्टेट देखिए, t लेस देन 0 पर, थैंक यू सर। तब ये स्विच ऑन था उस टाइम। सर यस सर जो मतलब जिसमें जो हमारे पास जो स्विचिंग एक्शन के बाद हमने मतलब सर्किट को ओपन इन्फिनिटी पे किया कि इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग एक्शन, मतलब T0 प्लस पे कर रहा हमने कि इन्फिनिटी पे जाके हमने स्विच को नहीं, open- 0 प्लस पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो भी किया है वो इन्फिनिटी वाला देखा है। ठीक है सर। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो कैपेसिटर है जब वो अपनी स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है तब क्या होता है, उसके थ्रू करंट जीरो हो जाता है, और स्टेडी स्टेट में करंट जीरो है, इसका मतलब ये है कि इट इज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट। तो यहाँ पर देखो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ये वाला स्टेडी स्टेट हमें मालूम है, स्विचिंग एक्शन के बाद वाला स्टेडी स्टेट है ये V0 माइनस भी एक्चुअली में एक स्टेडी स्टेट था, लेकिन ये स्विचिंग एक्शन से पहले वाला स्टेडी स्टेट था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था उस दिन कि
हमारे पास एक फैन है जिसको हम किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर ऑन कर रहे हैं, राइट? लेट अस से दैट दिस टाइम, हम एक्चुअल टाइम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेट अस से दिस इज एट 12 noon, आई एम स्विचिंग ऑन द फैन एंड आई एम मेकिंग अ ग्राफ ऑफ इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो 12 बजे से पहले वो फैन ऑफ था, यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी? 0 थी। 12 बजे मैंने उसका स्विच ऑन किया और स्पीड को फिक्स किया लेट अस से 500 आरपीएम पे। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, मैं एक्सपेक्ट तो ये करूंगा कि फैन इमीडिएटली अपनी उस स्पीड तक पहुंच जाए, बट ऐसा होगा नहीं। इट विल टेक टाइम, राइट? इट विल टेक टाइम टू बिल्ड अप द स्पीड बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। फिर मान लो हमें दिन में 3 बजे और ज्यादा गर्मी लग रही है, हम अब क्या कर रहे हैं? फैन की स्पीड को डबल करना चाहते हैं। सो लेट अस से वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द स्पीड टू 1000 आरपीएम नाउ। तो आपने क्या किया? रेगुलेटर से स्पीड को चेंज कर दिया। तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि वो इमीडिएटली चेंज हो जाए, 1000 आरपीएम पे आ जाए, बट ऐसा होगा नहीं। इट विल टेक टाइम टू बिल्ड अप। तो ये बिल्डअप वाला टाइम है, ट्रांजिएंट टाइम। अब देखो इस वाले केस में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो सिस्टम है हमारा फैन, वो 3 तरह की स्टेडी स्टेट्स में है, वो साइमल्टेनियसली नहीं, अलग अलग टाइम पे। ये एक स्टेडी स्टेट थी जब स्पीड कितनी थी? 0 थी। ये एक स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट 2, जब स्पीड कितनी है? 500 आरपीएम है। और ये एक स्टेडी स्टेट है 3, जब स्पीड कितनी है? 1000 आरपीएम। ठीक है। तो अब जब हम स्टेडी स्टेट 1 और स्टेडी स्टेट 2 के बीच का जो ये सब टाइम है, जब फैन की स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, ये है एक ट्रांजिएंट स्टेट। लेट अस कॉल इट ट्रांजिएंट स्टेट 1। ये भी एक ट्रांजिएंट स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट 2। तो ट्रांजिएंट स्टेट 1 के लिए जब हम ये जानना चाहते हैं कि फैन की स्पीड कितनी होगी, जब ट्रांजिएंट स्टेट 1 चालू हुआ था, वो चालू यहां पर हुआ था, तो ये वाली जो स्पीड थी वो किसके बराबर थी? स्टेडी स्टेट 1 की स्पीड के बराबर थी एक्चुअली। जब ट्रांजिएंट स्टेट 2 चालू हुआ, वो यहां पर स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रांजिएंट स्टेट 2 के लिए तो ये इनिशियल स्पीड है, यानी उसके लिए इसको हम कहेंगे n0 माइनस। लेकिन जब आप स्टेडी स्टेट 2 के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये n0 माइनस स्टेडी स्टेट 2 के पर्सपेक्टिव से n इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? तो हमारे क्वेश्चंस में भी यही हो रहा है। आप कैपेसिटर के इनिशियल वोल्टेज में इंटरेस्टेड थे, V0, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उससे पहले कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था। उससे पहले जो था वो एक पुरानी स्टेडी स्टेट से वो वोल्टेज हमें मिला था। इसलिए मैंने यहां पर भी ओपन सर्किट से देखा और यहां पर भी मैं ओपन सर्किट से देख रहा हूं अगली स्टेडी स्टेट में भी। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो हम इसके लिए बस कैपेसिटर की ये प्रॉपर्टी याद रख रहे हैं कि जब वो अपनी स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, वो स्टेडी स्टेट चाहे t ग्रेटर देन 0 के बाद हो या t लेस देन 0 से पहले की हो, तो जब भी वो अपनी स्टेडी स्टेट में होता है, उसका करंट 0 होता है, यानी इट एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट। दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। डज इट मेक सम सेंस? प्लीज आस्क if you have any doubts. सर एक बारी I is equal to 4 एम्पियर कैसे निकाला वो बता दो Where? सर। शुरू में ही सर क्वेश्चन के जो हमने सर V0 निकाला था। This one? यस सर। कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे I equal to 4 एम्पियर मैंने कैसे निकाला था? निकेत, are you there? So 20 divided by 5. 20 divided by 5. But why 20 divided by 5? Net resistance is 5 and 20 is the voltage, so V is equal to IR. Yeah. I is equal Basically, to we had E by- used the branch current method here, ओके सर। ओके right? यस सर। ठीक है। सृष्टि, do you have any doubt? सर V0 माइनस मतलब एक तरह से वो पहले शॉर्ट सर्किट की तरह काम नहीं करेगा? क्यों करेगा? फिर वो What is the meaning of
V0 minus. सर स्विचिंग एक्शन से पहले जस्ट पहले, है ना? पहले स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले कैपेसिटर किसी स्टेट में था और वो जो स्टेट थी वो एक स्टेडी स्टेट थी, राइट? अब उस स्टेडी स्टेट में क्या हुआ था, ये जो कंडीशन मैंने बनाई है वो थी, इसीलिए ये वोल्टेज जीरो नहीं है, क्योंकि ये जो सर्किट है वो ही इस तरह का है कि दैट स्टेडी स्टेट मेड दैट वोल्टेज टू बी इक्वल टू 4 वोल्ट्स। उस स्टेडी स्टेट ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया था 4 वोल्ट्स तक। ओके सर। ठीक है, तरुणा, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. वंशज? नो सर। ग्रेट। तो इंडक्टर वाले जो क्वेश्चंस हैं दैट विल टेक अप ऑन मंडे। मैंने कल आप लोगों से एक वीडियो और शेयर किया जहां पे सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, एंड आई होप किसी ने देखे नहीं होंगे, तो आज आप लोग एक बार उनको देखें। जस्ट ट्राई टू सी द क्वेश्चंस ऑन कैपेसिटर्स एंड ट्राई टू प्रैक्टिस देम, ओके?